Hello students, so welcome to the extra English class. So in this class we'll discuss about one chapter, that is The Cup and the Anthem, okay, by O. Henry. The Cup and the Anthem by O. Henry. So this is a story about a character, that is Soapy, okay. So how the character emphasizes, let's discuss about. The shies of approaching winter were there. Birds had begun to fly south. People seemed to want new warm clothes. The dead leaves covered the ground. This approaching winter made Soapy restless. He had no home and no warm clothes, yet he hoped to find a comfortable lodging for the winter. He hoped to spend winter's 3 months in the prison of Blackwell's Island. He had been to prison several times with that purpose. Another thing is that once again he made his small plans for going to the island. So, what happened? Then, Soapy's first plan was to have some good dinner at some one fine restaurant. Then he would say that he had no money. Another thing is that a cop would be called. He would be taken to a judge. A cop would be taken to a judge. The judge would send him to prison for 3 months. He entered a restaurant. The best food and the best people in their best clothes appeared here every evening. Unluckily, the head waiter saw his broken old shoe while he was entering the restaurant. He quietly but quickly put him out. So he entered another restaurant. He was able to get food, and after that he announced that he had no money. He himself requested the waiter to call the cop. Instead, the waiter threw him out on the hard street outside. Thus, his first plan to reach the prison didn't work. Then there was a shop with a wide glass window. Then Soapy took up. Okay, listen carefully. There was a shop with a wide glass window. Soapy took up a big stone and broke the glass. People came running. There was a cop also. Soapy admitted breaking the glass, but the cop's mind would not consider Soapy. Men who break windows glasses do not stop there to talk cops. They run away as fast as they can. Thus, this plan of reaching the prison was also failed. Then, a fear caught Soapy. No cop would arrest him. He thought of something else to try. He came to a cop standing in front of a big theater. Then he began to shout as if he had had too much to drink. The cop turned his back on Soapy. He said to someone standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have ordered to let them shout." Okay? We have ordered to let them shout. Then he was referring to Soapy as a college boy. Okay? So he was referring to Soapy as a college boy. Then Soapy was getting more and more restless. In desperation, he took away the umbrella of a man buying a newspaper. The man followed Soapy. He asked Soapy to give him back his umbrella. Soapy asked to call the cop standing at the corner. It turned out that the man himself had stolen the umbrella. So he didn't call the cop. He offered to give it to Soapy. Soapy threw away the umbrella. Then what happened? The twist. Now Soapy gave up all hopes of being arrested that day. He began to move towards Madison Square. He was going home, although it was only a sit in the park. At a quiet corner, he stopped. Here was his old childhood home. Sweet music came to Soapy's ears and seemed to hold him there. He thought of his childhood days. In the church, he had mothers, flowers, and hopes.
There were friends and clean thoughts and clean clothes. There was a sudden and wonderful chance in his soul. He saw how he had fallen. He saw the wasted time, his wrong desires, his dead hopes, and the lost power of his mind. He decided to fight to change his life. To change his life. He wanted to make a man of himself again. There was still time. He was young enough. He would again find his old purpose in life. The sweet music had changed him. He decided to find work the very next day. The new thoughts, the new thoughts had begun to take a firm hold on his mind. Then, just then, Soapy felt a hand on his arm. It was a cop. He asked Soapy what he was doing there. Full of his new strength, Soapy began to argue with him. The cop took Soapy with him. Next morning, the judge sentenced him to 3 months prison on Blackwell's Island. So, let's discuss its Hindi version. Okay, so विंटर का आगमन था। विंटर का आगमन का चिन्ह था। जो चिड़िया थे, पक्षी थे, वो साउथ की तरफ उड़ने लगे थे। लगता था कि लोग नए गर्म कपड़े चाह रहे हैं। तो मुरझाई हुई जो लीव्स थे वो धरती को ढक लिया था। तो इस आती हुई विंटर को देखकर सोपी के मन में बेचैनी जाग उठी और ये सोपी को बेचैन कर दिया था। उसके पास ना तो कोई घर था, ना ही कुछ गर्म कपड़े। किसके पास? सोपी के पास। फिर भी उसे ये एक होप था, आशा थी कि जो विंटर के लिए उसे कोई आरामदायक घर मिल जाएगा। उसे आशा थी कि सर्दियों के जो 3 मंथ्स, जो विंटर के जो 3 मंथ्स हैं, वो ब्लैक बेल के एक आइलैंड, जिसे टापू कहते हैं, ब्लैक बेल के एक आइलैंड के जेल में गुजारेगा। इसी उद्देश्य से वो कई बार जेल की यात्रा भी कर चुका था। तो एक बार उसे फिर उस आइलैंड पर जाने की उसने अपनी एक छोटी छोटी योजनाएं बनाई। तो अपनी योजना के मुताबिक सोपी की पहली योजना किसी बढ़िया होटल में अच्छा भोजन करने की थी। वो कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो कॉप को बुलाया जाएगा, तो उसे जज के पास ले जाया जाएगा। तो जज उसे 3 महीने के लिए जेल भेज देंगे। तो वो एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ बहुत अच्छा भोजन और बहुत अच्छे लोग अपने अच्छे अच्छे कपड़ों पर हर शाम दिखाई देते थे। सो दुर्भाग्य से वहाँ पर जो हेड वेटर ने रेस्टोरेंट में घुसते हुए उसके टूटे और पुराने जूते देख लिए। उनसे चुपचाप लेकिन वो जल्दी से उसे रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया। तो सोपी दूसरे रेस्टोरेंट में गया, उसे भोजन मिल गया, सोपी को भोजन मिल गया। उसके बाद उसने घोषणा कर दी कि उसने बोल दिया वहाँ पर कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने खुद भी वेटर से कॉप को बुलाने के लिए कहा, पुलिस को या सिपाही को बुलाने के लिए कहा। इसके बजाय वेटर ने उसे बाहर कठोर सड़क पर पटक दिया। इस प्रकार जेल पहुंचने की उसकी पहली योजना बेकार रही। उसके बाद बड़े बड़े शीशे की खिड़की वाली एक दुकान भी थी। सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे को तोड़ दिया। लोग दौड़ कर आए। वहाँ पर एक कॉप भी था, सिपाही भी था। सोपी ने शीशा तोड़ने की बात अपने आप को स्वीकार कर ली, पर कॉप का दिमाग सोपी के बारे में सोचने को तैयार ना था। तो कॉप ने, जो सिपाही ने, सोपी को ध्यान भी नहीं दिया। जो आदमी खिड़कियां तोड़ते हैं वे पुलिस के सिपाहियों से बात करने के लिए वहाँ पर नहीं रुकते। तो जितनी तेजी से संभव हो वे वहाँ से भाग जाते हैं।
तो मतलब आपने शीशा नहीं तोड़ा। किसने कहा? कॉप ने कहा। इस प्रकार सोफी का जो जेल पहुंचने का उसका ये प्रयास भी क्या रहा? असफल रहा। तो एक भय ने, एक फियर ने सोफी को जकड़ लिया। उसे कोई सिपाही या कोई कॉप उसे नहीं पकड़ेगा। उसने कुछ और करने की सोची। किसने? सोफी ने। तो वो एक ऐसे सिपाही के पास, ऐसे कॉप के पास आया जो एक विशाल बहुत बड़ा थिएटर के सामने खड़ा था। वो जोर जोर से ऐसे चीखने लगा कि मानो उसने शराब और जो ड्रिंक ज़्यादा की हो। तो कॉप ने सोफी की ओर पीट कर दी, सोफी को अनदेखा कर दिया। अपने पास में खड़े एक व्यक्ति से वो बोला, अरे ये कॉलेज के उन लड़कों में से है। कॉप ने बोला, ये कॉलेज के उन लड़कों में से है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें आज्ञा है कि इन्हें चीखने दो। ये जो शाउटिंग करते हैं ना, इन्हें चीखने दो। वो सोफी को कॉलेज का लड़का बता रहा था। जो कॉप था वो सोफी को कॉलेज का लड़का बता रहा था। सोफी अधिक और अधिक बेचैन होता जा रहा था। निराशा के दौर से उसने न्यूज़पेपर खरीदने की एक आदमी से छतरी उठा ली। न्यूज़पेपर खरीदने एक आदमी से अम्ब्रेला उठा ली। वो आदमी सोफी के पीछे पीछे आया। उसके बाद उसने सोफी से कहा कि वह उसे उसकी छतरी, उसकी अम्ब्रेला वापस कर दे। सोफी ने उससे कहा कि वो कोने में खड़े पुलिसमैन को बुला ले, जो कॉप था उसको बुला ले। पता लगा कि वो व्यक्ति स्वयं उस अम्ब्रेला को चुरा कर लाया था। जिस व्यक्ति से सोफी ने लाया, वो व्यक्ति एक अम्ब्रेला चुरा कर लाया था। इसलिए उसने सिपाही को या कॉप को नहीं बुलाया। उसने उसे सोफी को ही देने का प्रस्ताव किया और सोफी ने अम्ब्रेला को वहाँ पर फेंक दिया। तो अब उस दिन गिरफ्तार होने की, जो अरेस्ट होने की सोफी की सारी आशाएं पर पानी फिर चुका था। बड़ी मेहनत की और वो बढ़ चला। वो घर जा रहा था, फिर भी वो घर पार्क में एक सीट मात्र था। एक शांत कोने तक पहुंचकर वह वहां पर रुक गया। तो सोफी उस बगीचे में, उस गार्डन में एक शांत कोने पर पहुंचकर वहां पर रुक गया। तो क्यों रुक गया? तो इस जगह उसका बचपन का पुराना घर था। उस जगह पर सोफी का बचपन का पुराना घर था। तो उसके कानों में मीठा मीठा संगीत आ रहा था, जिससे सोफी को वहीं रोक दिया। उसे अपने बचपन के दिनों का विचार आया। वहाँ पर चर्च में रहने वाली जो माताएं, फूल और ऊंची उम्मीदें थी वहाँ पर बहुत मित्र थे और स्वच्छ विचार और स्वच्छ कपड़े भी थे। उसकी आत्मा में अचानक एक सरप्राइजिंग चेंजेस आ गई। उसने सोचा कि वो कैसे गिर चुका है। उसने अपने बर्बाद हुए वक्त को, अपनी गलत इच्छाओं को, अपनी जो डेड होप्स, मृत आशाएं को और नष्ट हो चुकी अपने मानसिक शक्ति को देखा। तो उसने अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। तो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए सोफी ने स्ट्रगल करने का निश्चय किया। तो वो फिर अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता था। सोफी अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता था। अभी भी वक्त था, वो काफ़ी जवान था, यंग भी था। सोफी काफ़ी यंग था। जीवन में वो अपने पुराने उद्देश्य को फिर से पा सकेगा, क्योंकि जो पुराना जो उसका होप था वो उसको फिर से पा सकेगा। मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था। उसने निश्चय किया था कि वो अगले ही दिन काम की तलाश करेगा। कोई भी काम करेगा, ऐसे चुपचाप वो नहीं बैठेगा। नए विचार उसके दिमाग पर अब अधिकार जमाने लगा था। तो नए विचार उसके दिमाग पर अधिकार, एक प्लेस जमाना लगा था।
तभी सोफी को लगा कि किसी ने उसके बाजू पर हाथ रखा है, मतलब किसी ने उसके हाथ पर, किसी उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो एक सिपाही था। किसने हाथ रखा था? वो एक सिपाही या कॉप था वो। उसने सोफी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो अपनी नए शक्ति के जोश में सोफी उससे बहस करने लगा, उससे आर्गुमेंट करने लगा। सिपाही जो कॉप सोफी को अपने साथ ले गया, सोफी को अपने साथ ले गया। तो अगली सुबह जज ने उसे उसी ब्लैकवेल आइलैंड में 3 मंथ्स या 3 महीने के लिए भेज दी और सज़ा सुना दी। भेज दी मतलब 3 महीने के लिए सज़ा सुना दी, वहाँ पर वो जेल में रहेगा उस आइलैंड के। So this is a complete story. That story says we need some work. Okay, in our daily life we need some work instead of sitting silently. Okay, हमें चुपचाप नहीं बैठना है. We have to work. Okay, we have to think ourselves. What can we do? We can do everything. So we have to think that our power, our knowledge, we can utilize it properly. Okay, if we will not utilize, then it will be a problem. Okay, so read this chapter, read this story, this much for today. Have a nice day for you.